that trading is a very, very difficult way of making money. I hope one day our regulators will put statutory warning like tobacco. Trading is injurious to your financial health. In the short term, market is like voting machine. Flows and sentiments will determine where the markets will go. But in the long term, it is like weighing machine. The fundamentals will set the prices. जैसा मैंने पहले बताया, 99 out of 100 people will be bullish about India long-term story. But that doesn't mean that you put 100% of your money in stock market. वॉरेन बफे ने बहुत पहले कहा था कि stocks are like your kids. Don't have more than what you can manage. Hello everyone, welcome to the Gold Teller podcast series where we interview senior startup founders and industry veterans on the finance side about their own investment journeys, life lessons and general trivia and tips. Today I am extremely thrilled to get with us Mr. Nilesh Shah, who is the managing director at Kotak Mutual Fund and one of the most respected fund managers in the country, an industry veteran, and no better time to get him on the show and his views at a time when the markets are reeling with a very deep correction and a lot of concerns globally. Welcome, Nilesh, to this podcast. It's really my privilege to have you with us and get your views on variety of subjects. So Thank you, welcome. Vivek, for having me over here. Yes, pleasure is all ours, Nilesh. So Nilesh, without further ado, we'll get to the $1,000,000 question right at the beginning. That over the last 3 months odd, the markets have reeled under a big correction. Though the headline index is not very down, it might be down 10%. But at Gold Teller, we did a small analytics where 54% of the stocks are down by more than 30%. And 17% stocks are down by more than 50%. So even though the Nifty is not down, the majority of the investor fraternity उनको वो काफ़ी अभी नेगेटिव में है. तो आपका क्या व्यू है इस पे इन द सेंस दैट व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू राइट नाउ? मार्केट का क्या व्यू है? बिकॉज यूएस में बहुत रिसेशन है एंड जियोपॉलिटिकल बहुत कंसर्न्स है. पीपल आर सेइंग यूएस में बिकॉज ऑफ दिस होल सिलिकॉन वैली बैंक काफ़ी रेपरकशंस होंगे. सो अदानी का भी क्राइसिस चल रहा है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है. तो कीपिंग इन माइंड ऑल दिस, आपको लाइक व्हाट डू यू फील about the market texture? Will it impact the Indian markets? Will we see a further fall? And anything else from your wisdom, what do you think we are positioned at? Sure. So Vivek, एक कहावत है, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजे चूली पे गिरे, घटना तो खरबूजे को ही है. So I am not surprised that many retail traders experience. सेबी ने पिछले दिनों एक स्टडी पब्लिश की थी. 89% of retail traders, F&O traders, yes, futures and options market have lost money. Only 11% of the traders have made money. They are more likely to be non-retail, institutional in nature. This has been known to most people across last 20-30 years. That trading is a very, very difficult way of making money. I hope one day our regulators will put statutory warning like tobacco. Trading is injurious to your financial health. Now this will be applicable only to 89-90% of traders and there will be 10% exceptions. But still, please remember, one thing which has not been talked more about but which is also equally revealing is if you do the analysis of stocks in which retail investors are primary holders versus stocks where institutional investors are primary holders, their performance is as divergent as possible. That means whenever an inexperienced person goes to invest based on tips,
goes to trade based on Telegram channel, based on social media, they are more likely to lose money. Remember that not everyone loses money, but majority of them loses substantial part of money. And hence, like you go to a barber for a haircut, like you go to a doctor for medical prescription, same way, please come to mutual fund distributor and mutual fund for your investment. Now, the second thing is about market. I wish we knew where market was heading. In the past, have we seen anyone who can predict market? Answer is no. My response has remained standard over the decades. In the short term, market is like voting machine. Flows and sentiments will determine where the markets will go. But in the long term, it is like weighing machine. The fundamentals will set the prices. If you are a trader, good luck in this kind of market, but do remember, trading is injurious to ordinary traders' health. If you are an investor, this is buy on correction market, but with a long-term horizon. There are many events which are lined up from here till May 24, which we believe will continue to impact the market. US is raising interest rates, but is expected to cut interest rates pretty soon. Now, when will they take U-turn will have a direct impact on our market. Oil prices are in double digit. Not so long ago, they were in triple digit. Where will oil head will have a direct impact on our market. If we look at our peers like China, Brazil, South Africa, if their markets are expected to do well, then foreigners will prefer to invest there. But if we are going to do well, we will get their flows. On the local side, how will quarterly earnings come out? What will be general election results in 24? These are all factors which will impact our market, and it's not really in our control to predict it. The best thing which is in our control is to react to when these events happen and market moves. As I mentioned, this is buy on dips market. Every correction one can look to invest in market. From August 21 till today, markets haven't given any return. It's trading almost at similar level. Whenever market has an extended period of no return, it delivers return compensating for that period in near future. So my feeling is that we are setting a stage for probably a very low to no return from August 21 all the way till probably May 24. But thereafter, markets could deliver returns compensating for this period. नीलेश जी, इसमें टू मोर क्वेश्चंस आई हैव. एक है कि लॉन्ग टर्म को आप कैसे डिफाइन करते हो? बिकॉज लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर मिलेनियल्स हु हैव कम इनटू द मार्केट, वो काफ़ी सब्जेक्टिव है. तो उसमें एनी थॉट्स ऑन दैट? सो एक स्विस घड़ी है पटेक फिलिप करके. हाँ जी. उसकी टैगलाइन ही कुछ इस तरह है कि यू डोंट ओन पटेक फिलिप, यू पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. टू मी दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म. आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जो छोड़ना चाहते हो वो लॉन्ग टर्म है. ओके भाई, थैंक यू. आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड इट्स अ गुड एनालॉजी. सेकंड थिंग इज, नीलेश जी, आपका व्हाट इज योर व्यू ऑन वैल्यूएशंस? एंड ये जो फुल अदानी एपिसोड है, उसका आपको लगता है कि कुछ मार्केट में रेपरकशंस उसके लिए होंगे कि अगेन दिस इज समथिंग लाइक अ नॉन इवेंट एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड अस? सो वैल्यूएशन में कुछ थ्री इडियट जैसा मूवी सीन हो गया है. इफ यू रिमेंबर दैट मूवी, इन वन सीन Amir Khan, Madhavan and Sarman Joshi were standing in a line, and then Professor Viru Sahasrabudhe asked someone to step up to do a job. Sarman Joshi को काम नहीं करना था, इसलिए जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा. But Amir Khan and Madhavan took a step back, and hence Sarman Joshi looked ahead. So our equity markets are trading at their historical valuation. 18 time forward PE है, 3 time price to book है. बट दुनिया भर की मार्केट अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से नीचे आ गई. ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, टर्की, मेक्सिको,
ये सारी मार्केट अपने हिस्टोरिकल एवरेज से पीछे आ गई। उस वजह से हमारे और उनके बीच में गैप वाइडन हो गया। हम तो वहीं खड़े थे सरमन जोशी की तरह जहां पे पहले थे, बट दुनिया आमिर खान और पीछे आ माधवन गए। के पीछे चली गई तो हम आगे दिख रहे हैं। अब अच्छा। धीरे 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 वो गैप नैरो हो रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि हम फेयर वैल्यू के आसपास है, बट मार्केट का नियम है कि हमेशा फेयर वैल्यू पे तो ट्रेड नहीं करती। डर के मारे, भय के मारे फेयर वैल्यू के नीचे जाती है, लालच के मारे फेयर वैल्यू के ऊपर भी चली जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज बाय ऑन डिप मार्केट। बट सर ये तो ऐसा है कि दिस इज अबाउट द निफ्टी, बट आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी में करेक्शन तो बहुत कम हुआ है, लाइक 10%, एंड स्मॉल कैप्स आर एक्चुअली क्लोजर टू देयर 52 वीक आई थिंक क्लोज। सो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा वैल्यूएशन का, like it is a better valued market on the broader side. And second thing, one more thing which I wanted to ask for the benefit of our listeners is the forward multiple which is there. उसके बारे में if you can touch a bit as to what is that and what is the certainty, since it is a forward looking number. अगर आज earnings में आपको कितना certainty है वो रहेगा, because the earnings itself is lower than expected, तब the multiple is actually higher. सो एक स्मॉल, मिड एंड लार्ज, उसके परफॉर्मेंस में और वैल्यूएशन में जरूर अंतर है। एंड स्मॉल कैप्स की करेक्शन थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। Okay. दे आर ट्रेडिंग इन देयर इक्विलिब्रियम रेंज। जनरली लार्ज कैप सबसे महंगे होते, फिर मिड कैप आते, फिर स्मॉल कैप आते हैं। उनके बीच में एक अंतर रहता है। एंड इवन टुडे देयर इज नो big call that you should be overweight large cap or you should be overweight small and mid cap. I think looking at the volatility, marginal overweight large cap and marginal underweight small and mid cap is fine. And in the correction, try to buy small and mid cap. Okay. Now, forward earnings का हम जब भी कॉल लेते हैं गलत ही होते हैं। It's impossible to predict future. बट मार्केट कुत्ते की दुम है, वो हमेशा फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड करती है डिस्पाइट गोइंग रॉन्ग टाइम एंड अगेन। एंड यहाँ पे हमें ये कॉल लेना है 10 साल के बाद भारत की कॉर्पोरेट अर्निंग्स आज से ज़्यादा होगी कि नहीं। दुनिया के बहुत सारे देश और मार्केट ऐसे जहाँ पे ये कॉल में लोग कहेंगे पता नहीं। जो भारत का सबसे बड़ा क्रिटिक है, जो सबसे बड़ा पेसिमिस्ट है भारत के ऊपर, उसको भी अगर ये पूछे कि बस 10 साल के बाद ये बता दे भारत की कॉर्पोरेट अर्निंग्स आज से ज़्यादा होगी कि नहीं, तो वो भी झिझकते हुए हाँ बोलता है। अभी कुछ समय पहले मैं एक मीटिंग में भाषण दे रहा था इंडिया के ऊपर। एक बंदे ने खड़े होके बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वैसा तो इंडिया में होने वाला नहीं है। तो ने बोला ठीक है सर, आप अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। आज 17,000 निफ्टी चल रही है और आप बेरिश है इंडिया के ऊपर, तो 17,000 पे निफ्टी बेच दीजिए। 10 साल के बाद मिलेंगे हम। अगर निफ्टी ऊपर है तो आप मुझे पैसा दे देना, नीचे है तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई, कोई आवाज नहीं निकली। सो हमें एक साल की अर्निंग्स कहाँ जाएगी पता नहीं है, बट ये पक्का विश्वास है कि 10 साल की अर्निंग्स तो ऊपर जाने वाली है। और इसीलिए भारत एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे हर करेक्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। Nilesh ji, next thing again for our listeners, that asset allocation पे आपका क्या views है, and like in case अगर आपका real estate पे भी कुछ view हो, that 100 रुपये है इंसान के पास तो कितना उसको invest करना चाहिए, especially in equities, non-equities, and within equities, active funds में, passive funds में आजकल बहुत बड़ा debate चल रहा है about active versus passive, and large mid cap में allocation, इन पे आपका views would be good to know. सो असेट एलोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने पहले बताया, 99 आउट ऑफ 100 पीपल विल बी बुलिश अबाउट इंडिया लॉन्ग टर्म स्टोरी, बट दैट डजंट मीन दैट यू पुट 100% ऑफ योर मनी इन स्टॉक मार्केट।
कोविड के समय में मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया था, नीलेश भाई आप मेरे डॉक्टर साहब से बात करिए। डॉक्टर साहब ने पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया था, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाया था, और कोविड में जो गिरावट आई उस वजह से वो डर गए थे। उनको एकदम सेफ रिटर्न चाहिए था। उनकी रिस्क प्रोफाइल थी बहुत ही कंजर्वेटिव। इतनी वॉलेटिलिटी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने यही रिक्वेस्ट की कि अभी आप कुछ मत करिए, 3 महीने बाद देखते हैं, तब तक पता चल जाएगा कोविड क्या चीज़ है। बट डर का माहौल इतना ज़्यादा था, और रोज़ जिस तरह से मार्केट में गिरावट होती थी, उन्होंने वो सारी चीज़ें बेच बाच के फिक्स डिपॉजिट कर दी। 3-4 महीने बाद फ़ोन आया कि नीलेश भाई फिक्स डिपॉजिट में जो 3 साल में रिटर्न आने वाला है, मार्केट ने तो उतना 3 महीने में दे दिया। तो मैंने यही कहा, डॉक्टर साहब आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत कंजर्वेटिव है, और आपके पेशेंट, आपके हितैषियों ने आपको सबसे ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न वाले स्टॉक्स और फंड दे दिए। अगर आप वॉलेटिलिटी सहन करते तो आपके जो हितैषियों ने रिकमेंडेशन की थी वो सही हो जाती। लेकिन आपके पास वॉलेटिलिटी सहन करने की ताकत नहीं है, और इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप कंजर्वेटिवली निवेश करें। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे डिस्पाइट लॉन्ग टर्म स्टोरी, एंड हेंस असेट एलोकेशन इज मोस्ट क्रिटिकल। कितना पैसा डेट में, कितना इक्विटी में, कितना रियल एस्टेट में, कितना सोने में लगाए, उसके लिए एक प्लान बनाना जरूरी है। पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल समझिए। मैं राहुल द्रविड़ जैसा सॉलिड बैट्समैन हूँ या वीरेंद्र सहवाग जैसा केयरफ्री बैट्समैन हूँ। दूसरी चीज़, मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप 7 दिन का पैसा लगा रहे हैं तो इक्विटी में लगाने का मतलब नहीं है। अगर आप 7 साल का पैसा लगा रहे हैं तो डेट में लगाने के लिए सोचना चाहिए एक बार। सो असेट एलोकेशन के ऊपर फोकस करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो नीलेश जी हम भी गोल्ड टेलर में क्या करते हैं कि 3 साल और 5 साल से नीचे के जो गोल्स होते हैं उनको इक्विटी में डालते ही नहीं हैं, और इमरजेंसी फंड अलग रखते हैं, एंड देन बाकी जो भी पैसा हम सजेस्ट करते हैं जितना ज़्यादा हो सके इक्विटी में आपको डालना चाहिए। नाउ सर, कमिंग टू द एक्टिव वर्सेस पैसिव डिबेट, इसमें व्हाट इज़ द व्यू, क्योंकि इनफैक्ट आई विल लाइक टू पॉइंट दिस डिबेट टू 2 पार्ट्स, एक्टिव वर्सेस पैसिव, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस पीएमएस। तो क्या है कि ये सब साइकिल्स है, जैसे मैं भी बहुत साल से देख रहा हूँ, हर 2 साल में कभी म्यूचुअल फंड्स बेटर करते हैं, कभी पीएमएस बेटर करते हैं, कभी पैसिव्स बेटर करते हैं, कभी एक्टिव्स बेटर करते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर मैंने क्या करना चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है कि साइकिल की तरह वो घूमते जा रहे हैं। जब जब पीएमएस बेटर होता है तो पीएमएस में घुसते हैं। अभी लास्ट 2 साल म्यूचुअल फंड्स हैव डन वेल, तो सब म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो बेटर ग्रास इज ग्रीन वाला सिचुएशन हो रहा है। सो विवेक भाई, साइकिल तो हर चीज में रहेगी। हम्म, आज पैसिव फंड में रिलायंस पावर भी आ जाता है, यस बैंक भी आ जाता है। ज़्यादातर फंड मैनेजर उसमें निवेश नहीं करते। हम्म, अब मार्केट ऐसा है कि कभी यस बैंक के चलने से इंडेक्स ऊपर जाता है, कभी रिलायंस पावर के चलने से इंडेक्स ऊपर जाता है। उस समय जिस फंड ने इसमें निवेश नहीं किया है वो फंड को अंडर परफॉर्म करते हैं, तब लगता है पैसिव में निवेश करना चाहिए। बट इवेंचुअली फंड मैनेजर का कॉल सही गिरता है और फंड इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे देता है। इनफैक्ट आई डोंट नो ये विजिबल है कि नहीं, बट आई विजिबल थिंक है, हाँ। विजिबल है। हाँ जी। ये मेरे फंड के परफॉर्मेंस है, ओके। एंड आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर फंड में 3 साल, 5 साल, 7 साल आउट सिंस परफॉर्मेंस है। हाँ जी सर। हमारे रिटर्न्स पॉजिटिव हैं। हाँ जी। बहुत कम फंड है जहाँ पे एक आध पीरियड में रिटर्न्स नेगेटिव है। हम्म। सो मेरे हिसाब से अभी भी एक्टिव फंड मैनेजर में क्षमता है कि वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे। इनफैक्ट अगर आप वॉरेन बफे को देखें, उनकी बर्कशायर हाथवे का रिटर्न पिछले 10 साल से इंडेक्स से कम रहा है। हमारे म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा फंड मैनेजर नहीं है जिसका फंड 10 साल से इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार म्यूचुअल फंड, पीएमएस और पैसिव फंड तीनों को
मिक्स में। संतुलन में रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। तीनों कॉम्प्लीमेंटरी है, एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि खाली पैसिव में ही डाल सकते हैं, खाली पीएमएस में ही डाल सकते हैं, खाली म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। आप तीनों में डाल सकते हैं पैसा। ओके। एंड नीलेश जी, एक और चीज़, जैसे हम तो फाइनेंशियल प्लानर्स है, तो मैं देखता हूँ लार्ज इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर, सबके पास माने बहुत सारे फंड्स होते हैं। लाइक समटाइम्स आई सी 20, 30, 40 फंड्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। सो उस पे आपका कुछ व्यू है, जैसे व्हाट इज़ द आइडियल नंबर ऑफ इक्विटी फंड्स दैट वन शुड हैव? डेट का मैं नहीं बात करूंगा, बिकॉज उसमें एफएमपीज भी होते हैं, तो अलग अलग सीरीज होते हैं, मैंने बट इक्विटीज में हाउ मेनी फंड्स आर इनफ फॉर एन इन्वेस्टर टू मीट हिज ऑब्जेक्टिव्स, इफ यू हैव एनी व्यू ऑन दैट? सो वॉरेन बफे ने बहुत पहले कहा था कि स्टॉक्स आर लाइक योर किड्स, डोंट हैव मोर देन व्हाट यू कैन मैनेज। म्यूचुअल फंड स्कीम भी उसी तरह है। आपने 50 स्कीम ले ली, उससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपने कौन सी स्कीम कब तक रखी, उससे आपका परफॉर्मेंस तय होता है। मेरे हिसाब से एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को 10 से 12 म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाए इक्विटी में, वो मोर देन सफिशिएंट है। बिटवीन 6 to 12 स्कीम्स आर मोर देन सफिशिएंट। राइट। थैंक यू। एक्चुअली हम भी खाली 5-6 स्कीम ही जनरली सजेस्ट करते हैं। एंड हमने एक्चुअली देखा है विथ एक्चुअल डेटा दैट द मोर द स्कीम्स द वर्स द परफॉर्मेंस। क्योंकि क्या होता है कि जो बेकार स्कीम्स है, बिकॉज द अमाउंट इज स्मॉल, द यूजर फील्स की ये तो छोटा अमाउंट है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर 6 स्कीम होगा तो एवरी स्कीम हैज़ अ डिसेंट एलोकेशन, सो दे विल बी फोर्स्ड टू रिव्यू दैट more frequently. So that is the thing which we have seen. Now नीलेश जी, अगर म्यूचुअल फंड्स पे जाते हैं, आज काफ़ी इन्वेस्टर्स have come into the market only after 2020 to 20 कोविड टाइम। A lot of म्यूचुअल फंड्स ने ये स्टडी किया है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर 15-20%, कुछ केसेस में ज़्यादा भी, बट इन्वेस्टर्स हैव नॉट मेड दिस मनी। सो इसमें वुड यू be able to throw some light from a Kotak Mutual Fund perspective about any specific fund कि फंड का रिटर्न्स क्या हुआ है और इन्वेस्टर का रिटर्न्स क्या हुआ है, एंड व्हाई इज दिस डिस्पैरिटी बिटवीन द टू? सो विवेक भाई, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। यूएस में भी यही प्रॉब्लम है कि फंड का रिटर्न और निवेशक का रिटर्न अलग अलग है, और ज्यादातर निवेशक का रिटर्न फंड के रिटर्न से कम रहता है, बहुत कम रहता है। एंड इसको मैं कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि दो आदमी हैं, दोनों ने पेड़ लगाया। एक बंदे ने जमीन अच्छी देखी, सीड अच्छा खरीदा, मिट्टी अच्छी लगाई और फिर पानी और खाद देता रहा, तो उसकी वजह से पेड़ बड़ा हो गया। दूसरा बंदा था, उसने भी मिट्टी बहुत अच्छी खरीदी, ज़मीन अच्छी देखी, सीड अच्छा खरीदा, सबसे अच्छा खाद लेके आया, बट जब प्लांट किया और कुछ नहीं निकला तो 2 दिन के बाद उसने खोल के देखा, अरे यहाँ पे तो अच्छा नहीं है, किसी और जगह पे डालता हूँ। फिर वहाँ पे 1 वीक के बाद देखा कुछ नहीं हुआ तो तीसरी जगह पे डाल दिया, फिर तीसरी जगह पे कुछ नहीं हुआ तो चौथी जगह पे, वो जगह ही बदलता रहा। उसका सीड कभी पेड़ बना ही नहीं, पौधा बना ही नहीं। जिस तरह गार्डनिंग में आप एक सीड से पौधे की जर्नी को बाहर से देखते हैं और जमीन रोज नहीं बदलते, कुछ उसी तरह म्यूचुअल फंड में करना है। इट इज नॉट टाइमिंग द मार्केट विच मेक्स रिटर्न फॉर यू, इट इज टाइम इन द मार्केट विच मेक्स रिटर्न फॉर यू। बट सर, इसमें क्या डिफरेंस है? एनी लाइक क्योंकि लोग समझते नहीं है, बट एनी नंबर्स दैट आर देयर कि फंड का रिटर्न इतना है एंड इन्वेस्टर का रिटर्न में इतना डिफरेंस है? बिकॉज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आधे रिटर्न्स थे व्हाट आई हैड रिकलेक्टेड लास्ट एचडीएफसी ने किया था शायद। सो अगर हम डलाबार स्टडी को देखें जो यूएस में की थी, हाँ हाँ। वहाँ पे फंड रिटर्न ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर रिटर्न से दुगना था, तो या इन्वेस्टर का रिटर्न आधा था। भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है। लोग एक फंड से दूसरे फंड में परफॉर्मेंस देख के, जब पास्ट परफॉर्मेंस देख के निवेश करते हैं तो ज़्यादातर बार अपनी मंजिल पर पहुंचना चूक जाते हैं। right. Nilesh ji, now coming to
आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, वन फ्यू क्वेश्चंस हियर, आई थिंक पीपल वुड लव टू नो, अ वेटरन लाइक यू, व्हाट वाज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एवर इन लाइफ? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, and I think very few people would have the kind of vintage in the equity markets like you. So if you could like jog your memory in the past, like what was your first investment, your best investment, your worst investment, and your current asset allocation. So these are the things which would be helpful for and exciting for people to know. जब मैंने 90s में अपने करियर की शुरुआत करी स्टॉक मार्केट में, तो मैं आर्टिकलशिप कर रहा था। स्टॉक एक्सचेंज के पीछे हमारी दुकान थी, तो लोगों का हल्ला गुल्ला देख के स्टॉक मार्केट की तरफ बह गया। और उस समय बिग बुल की तेजी थी, तो मुझे लगा पैसा पेड़ पे उगेगा और घर पे बटोर के लेके आऊँगा। बट आई लॉस्ट ऑल माई मनी एंड दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि छोटे से नुकसान, भले 100% लॉस कर दिया, बट छोटे अमाउंट पे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे दिया। मेरा खुद का अगर एसेट एलोकेशन देखूँ, तो मेरी 100 रुपये की अगर इनकम है, तो उसमें 43, पहले मतलब पिछले साल तक 43, अब 39% टैक्स चला जाता है। बाकी 10 रुपया पीएफ में जाता है, 10 रुपया एनपीएस में जाता है। बाकी जो बचता है उसमें से 20 रुपया एसआईपी का स्कीम इन द गेम सर्कुलर है, उसमें चला जाता है। तो बचता है पैसा, वो मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ। तो मेरे हाथ में मेरे निवेश की जर्नी कुछ है नहीं, सब सेबी ने और पीएफ ने और एनपीएस ने डिसाइड कर लिया है मैं कहाँ पे निवेश करूँगा। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, राइट। और आपका बेस्ट और वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट, तो आपने वर्स्ट एक तरीके से बताया था कि बिग बुल के टाइम पे आपने यू लॉस्ट एवरीथिंग, सो दैट इज एन इंसिडेंट, बट एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट बेस्ट और वर्स्ट विच यू आर हैप्पी, आइदर इट्स अ म्यूचुअल फंड, स्टॉक, पीस ऑफ लैंड, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। विवेक भाई, दो तरीके से आंसर दूंगा, एक फाइनेंशियल टर्म्स में, एक नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मेरा हुआ वो रिलेशनशिप्स में हुआ। पैसों से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं भी खरीद सकते। जो इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में किया, चाहे कहीं पे समय दिया, कहीं पे अपना ब्रेन दिया, कहीं पे पैसा लगाया, बट वो रिलेशनशिप ही बहुत बार काम आती है। एंड उन रिलेशनशिप के बगैर मैं ये कुर्सी पे नहीं बैठा। दूसरी, अगर फाइनेंशियली देखे, तो मेरा जो सबसे अच्छा निवेश है वो मैंने कुछ बच्चों की पढ़ाई की स्पॉन्सरशिप की थी। एक एनजीओ के जरिए, परिवार करके एक एनजीओ जिससे मैं जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए कोशिश करते थे। कुछ लोगों को जो मैं जानता था आसपास में, उनकी पढ़ाई की भी स्पॉन्सरशिप ली। आज उस पढ़ाई के जरिए जब उन बच्चों को देखता हूँ कि वो दुनिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने और अपने फैमिली को गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पैसा तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन ये जो निवेश है, किसी को काबिल बनाना, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना, वो आपको जिंदगी भर काम आती है। और आपका वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कुछ? वो मैंने पहले ही पता है, 90 के दशक में शुरुआत की तो सारे पैसे उड़ गए। अच्छा। एक कहावत है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिच बंदा और एक्सपीरियंस बंदा मिलते हैं। रिच बंदा का पैसा चला जाता है और उसे एक्सपीरियंस मिल जाता है। मैं तभी रिच नहीं था, बट एक्सपीरियंस सारा पैसा गंवा के कमा लिया। नीलेश जी, नाउ कमिंग टू आपका इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, और आप स्टॉक्स पे नहीं इन्वेस्ट करते हो बिकॉज ऑफ दी सेबी रूल्स, और बिकॉज ऑफ अ फिलोसफी, लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आपने जो बोला कि आप स्टॉक्स पे नहीं करते हो? हमने कोटक म्यूचुअल फंड में एक नियम कुछ इस तरह बना के रखा है कि हम जो भी स्टॉक रिसर्च करेंगे, जहाँ पे मैं अपनी कंपनी के पैसे लगा के, अपनी कंपनी का समय लगा के रिसर्च कर रहा हूँ, उस स्टॉक में पर्सनल लेवल पे निवेश नहीं करूँगा। बिकॉज आज सपोज सेबी का रेगुलेशन कहता है कि जहाँ पे आपने निवेश किया है वहाँ पे निवेश मत करिए। हम उससे एक कदम आगे हैं कि जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं वहीं पे निवेश नहीं करेंगे। बिकॉज अगर रिसर्च में एक अच्छा आइडिया मिलता है तो उसका सारा लाभ हमारे यूनिट होल्डर्स को मिलना चाहिए। हमें
उसके ऊपर पैसा नहीं बनाना चाहिए। No, no, that is wonderful. And इस वजह yes, से डायरेक्ट स्टॉक निवेश काफ़ी कम है अदर देन मेरे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। बट okay. फेयर इनफ, इट्स इम्पोर्टेंट कि वी फॉलो दी, सी वी आर इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग ट्रस्ट, हाँ, फिड्यूशरी है एंड एक्सिस के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, है। एंड हम हमेशा एक ही चीज में बिलीव करते हैं, कर भला तो हो भला। अगर मैं अपना काम दिल से कर रहा हूँ तो ऊपर वाला मेरा ध्यान तो रखेगा ही। नहीं नहीं एब्सोल्युटली आई थिंक एक्सिस के बाद इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट यू नो म्यूचुअल फंड्स आर केयरफुल दो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स मैंने भी देखा है लास्ट 20 साल से यू नो 2008 क्राइसिस कोविड क्राइसिस म्यूचुअल फंड्स आर वन vehicle which has lived up to you know giving the funds back to investors at all points in time. बैंक्स में डिले हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में तो डिले हुए हैं बहुत सारे, बट म्यूचुअल फंड्स में कभी भी लिक्विड फंड्स या इक्विटी फंड्स में वो जो सेटलमेंट साइकिल है, पेमेंट साइकिल, उसमें कभी डिले नहीं हुआ। इनफैक्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स हुए हैं, बट स्टिल द परफॉर्मेंस इज गुड एंड दैट वाज काइंड ऑफ ए लोन वुल्फ, और वो मे भी 2-3 वुल्फ मिलके उन्होंने प्रॉब्लम किया था। देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक शिप बट दैट डजंट डिफाइन द इंडस्ट्री। Exactly, right. Nilesh ji, now coming to two aspects, three aspects actually, government ने last हफ्ते भर पहले suddenly सरप्राइज करके 3 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को इनएफिशिएंट कर दिया है। वन इज डेट फंड्स, वन इज गोल्ड फंड्स एंड थर्ड इज इंटरनेशनल फंड्स। सो टू टैकल इंटरनेशनल फंड्स फर्स्ट, आपके पास भी नैस्डैक है, बट ऑफ कोर्स उसमें अभी बिकॉज ऑफ द सेबी लिमिटेशन ऑफ द $7 billion वहाँ पर लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड इज इट दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू डिसवेड पीपल टू इन्वेस्ट आउटसाइड बिकॉज उन्होंने 20% TCS ला दिया है, इंटरनेशनल फंड्स को टैक्सेशन भी पूरा डेट कर दिया है। सो बट एट द सेम टाइम आज नैस्डैक में जो कंपनीज है उस कंपनीज को इंडिया में आप प्ले नहीं कर सकते बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर अनलिस्टेड, you know, but in Nasdaq they are listed, so you investor in India can play it through the Nasdaq you know ETF or a fund of funds. So what is your view on that subject? सो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सरकार मुझे एज एन इंडिविजुअल 2,50,000 डॉलर Yes, वहाँ LRS. लेके जाने दे रही है। Hmm. अगर खुदा न खास्ता कल भारत को एफएक्स की क्राइसिस आई Hmm. तो सरकार इंडिविजुअल्स को कैसे बोलेगी कि आप अपना बाहर का इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करके वापस लेके आइए। Hmm. सेकंड, सरकार को लगता है कि इंडिविजुअल्स बेटर फंड मैनेजर से बाहर निवेश करने के लिए वहाँ पे वो लालच की वजह से, नॉलेज की वजह से लॉस नहीं करेंगे जैसे इंडियन मार्केट में करते हैं। उसके सामने म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करे तो एटलीस्ट हम प्रोफेशनली काम करेंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सरकार कभी भी हमें हुक्म दे सकती है कि आप पैसा वापस लेके आइए, हम सारा माल बेच के वापस लेके आएंगे। Hmm. तो LRS चालू रखना इंडिविजुअल्स के लिए और म्यूचुअल फंड के ऊपर लिमिट लगाना, इसका लॉजिक तो हमसे परे है। आई एम श्योर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कॉमन मैन आर अनेबल टू अंडरस्टैंड बट द गवर्नमेंट माइट वुड हैव थॉट अबाउट। Hmm. रही And बात और गोल्ड फंड की, अगेन मतलब गोल्ड फंड के बारे में समझना मुश्किल है। अगर मैं खुद जाके फिजिकल गोल्ड खरीदूं तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट है 3 साल के बाद, बट वही गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदूं तो उसके ऊपर नहीं है। दैट मीन्स सरकार मुझे एनकरेज कर रही है कि फिजिकल गोल्ड खरीदो। अब विवेक भाई, आप गोल्ड खरीदने जाइए बाजार में, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम गोल्ड खरीदिए, आपको पता है कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। तो रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के जरिए आए तो उनको शायद आधा टक्का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। बेचारा मार्केट में जाएगा तो सोने के क्या चीज़ मिलेगी वो पता नहीं है और ऊपर से 25-30% ज़्यादा देगा। तो सरकार क्यों रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान करा रही है वो भी मेरी समझ के बाहर है। तो एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में लिक्विडिटी भी अभी थोड़ी कम है, तो वहाँ भी थोड़ी इशू है। गोल्ड बॉन्ड बहुत ही अच्छा निवेश है, बट हाँ जी। उसके लिए सरकार को 2-2.5% कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ रही है। हाँ, सरकार को हाँ
हाँ। बट गोल्ड फंड वर्सेस डायरेक्ट गोल्ड बाइंग, उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर का कचुम्बर निकल रहा है हम्म। वो मेरी समझ के बाहर है कि सरकार क्यों चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो। हाँ जी सर, आई थिंक सॉवरेन, सो गोल्ड फंड्स तो लगता है कि अब इट विल बी ए डेड एसेट क्लास नहीं, मुझे पॉसिबली। लगता है कि नेक्स्ट ईयर सरकार इस चीज को जरूर ध्यान में लेगी और अच्छा। रूल्स चेंज हो जाएंगे। हम पूरी रिक्वेस्ट करेंगे ये डेटा के साथ, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट विल चेंज द रूल्स फॉर इंडिविजुअल टैक्सेशन. They will encourage investment via gold fund rather than direct gold buying, so that retail investors don't pay higher transaction cost. ओके। एंड सर, आप इंटरनेशनल में एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि विच लाइक बहुत सारे फंड्स है राइट टुडे, ऑफ कोर्स यू गाइस डोंट हैव इट, बट जैसे लास्ट ईयर में एक फंड था HSBC ब्राज़ील फंड, तो उसमें यू नो दैट फंड वाज डाउन अ लॉट बिकॉज ब्राज़ील अगेन इज़ अ कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमी। आपके तो नैस्डैक फंड है, तो you have China funds which did very poorly. Like again, वहाँ पर there is a problem of plenty in terms of choice for investors. You have any view that two things which I wanted to ask you. One is, despite the debt taxation, is it advisable for an investor to take a non-rupee exposure, माने बाहर में एक करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा है कि अगर लिया जाए तो कौन से करेंसी, या एनी थंब रूल्स, एनी सजेशंस यू हैव फॉर इन्वेस्टर्स? So जिस चीज की आपको समझ नहीं पड़े वो चीज नहीं करनी चाहिए. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 110%, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए. जैसे हमने देखा है फॉरेनर्स को कि कई बार वो भारत की हेडलाइन पढ़ के भारत बेच देते हैं, डर जाते हैं. सेम उसी तरह हमारा हाल होगा जब हम ब्राज़ील या चाइना या रशिया में निवेश करेंगे. तो मेरे हिसाब से फॉर एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर आइदर आप यूएस में निवेश करिए बिकॉज वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और ग्लोबल फंड्स में निवेश करे जो दुनिया के सारे देशों में, सारी इमर्जिंग मार्केट में निवेश करता रहे. ये कंट्री स्पेसिफिक कॉल लेना बहुत रिस्की है. जिसे समझ पड़े वो ले ले, बट अगर आपको समझ नहीं पड़ती है तो छोड़ देना चाहिए. क्रिकेट में सारे क्रिकेटर हुक करे वो जरूरी नहीं है, बिकॉज वो एक रिस्की शॉट है. अगर आपको बाउंसर के सामने खेलना आता है तो हुक करिए, नहीं आता है तो डक करिए. बहुत सारी हाफ वॉली मिलती रहेगी जिस पे हम रन बना लेंगे. नीलेश जी, आपका व्हाट इज योर व्यू ऑन द AMC बिजनेस? क्योंकि अभी क्या है कि यू नो द गवर्नमेंट लुक्स वेरी इंक्लाइंड यू नो टू ओवर रेगुलेट द AMC बिजनेस स्पेशली. यू नो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में उतना रेगुलेशन नहीं है, दो अभी दे हैव कम विद द रेगुलेशन ऑफ प्रीमियम 5 लाख के ऊपर होने से टैक्सेशन होगा, बट स्टिल इंश्योरेंस प्लान्स, जैसे अभी हमने नील बोराटे है, वो जर्नलिस्ट है, उनसे भी बात किया था, बहुत जन से बात किया था. सो दिस HDFC और 2-3 इंश्योरेंस प्लान्स बहुत बिक रहे हैं इन दिस ईयर में, एंड कुछ एक्चुअल रिटर्न उसमें 6.25% के ऊपर नहीं है, बट लोग उसको 8-10% करके बेच रहे हैं. सो आपका क्या व्यू है AMC बिजनेस पे, दैट इज इट द रेगुलेशंस आर एन ओवरकिल, एंड जनरल में आपके क्या थॉट्स हैं उस पर? सो एएमसी लंबी रेस का घोड़ा है. अच्छा. हम अपने क्लाइंट का भला करते हैं. हम्म. हमारी सारी कोशिश यही है कि मैं अपने क्लाइंट का भला करूं, हम्म. उनको उनकी फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करूं. जिस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इतना उम्दा हो, नोबल हो, हम्म. वो बिजनेस आज नहीं तो कल चलता ही रहेगा. एंड मैं ये नहीं मानता कि सेबी हमें ओवर रेगुलेट कर रहा है. अच्छा. ओके. सेबी के रेगुलेशन की वजह से ही निवेशकों का विश्वास हम पे बना है. वेरी गुड पॉइंट. शॉर्ट टर्म में टैक्स एडवांटेज इधर उधर दे दिए, सेबी के 2 रेगुलेशंस हमें ज़्यादा लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें उस रास्ते पे चलाती है कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग ट्रस्ट, एंड वी हैव टू ऑलवेज डू what is good for our interest, what is good for our unit holders interest. जब तक हम ये नोबल ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ेंगे तब तक मुझे लगता है कि एएमसी का बिजनेस तो चलता ही रहेगा. लंबी रेस का घोड़ा है, एक आध लेग में पीछे रहेंगे
बट इवेंचुअली मैच तो हम ही जीतेंगे। आई एम श्योर। एंड सर, आपका ये डेट इन्वेस्टिंग पे क्या व्यूज है? बिकॉज नाउ बेसिकली अभी बैंक फिक्स डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स के जो स्कीम्स है, ऑफ कोर्स डेट फंड्स में फिर भी एक एडवांटेज है दैट लिक्विडिटी बेटर है, टैक्स को आप डेफर कर सकते हो एट द टाइम ऑफ सेलिंग। बट आपको लगता है कि ये जो डेट फंड्स का पूरा कैटेगरी है विल सी एन आउटफ्लो इनटू बैंक डिपॉजिट्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? यहाँ पर रिस्क एक और अलग टाइप के रिस्क है कि ये डेट फंड से निकल के लोग यील्ड्स चेज करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्की में डालेंगे या इक्विटी में डालेंगे। तो डू यू थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ बिग मोमेंट फॉर इन्वेस्टर्स जहाँ पर उनको केयरफुल रहना चाहिए? एंड और what risks do you see or any benefits with this big rule that is coming? ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपने निवेशकों को किस तरह से समझा पाते हैं। हम्म। टैक्स बेनिफिट गया है, बट मैं 500 रुपये में आपको 50 कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन दे सकता हूँ, एनी टाइम लिक्विडिटी देता हूँ, पूरी ट्रांसपेरेंसी देता हूँ, आपका एक नया पैसा भी कहाँ पे लगा है आपको पता रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं लोएस्ट इंटरमीडिएशन कॉस्ट रखता हूँ कंपेयर टू बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड। तो ये सारी चीज़ें मिला के देखिए, डेट निवेशक के पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के लिए हमेशा जगह रहेगी। हमें निवेशकों तक पहुंचना जरूरी है। आज लाखों करोड़ों रुपए सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़े हैं, करंट अकाउंट में पड़े हैं, वहाँ पे कौन सा रिटर्न छूट रहा है लोगों का? महंगाई से हमेशा कम ही रिटर्न मिला है। लोग बर्फ़ लेके खड़े हैं, कड़ी धूप में बर्फ़ पिघल रहा है। हमें तो उन लोगों को खाली ये बताना है कि ये बर्फ़ आप हमारी रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, पिघलना बंद हो जाएगा। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है नीलेश जी, सो लास्ट विल कम टू द लास्ट लेग ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो दो तीन चीज़ पूछना है। वन इज हाउ डू यू सी लाइक बिग ट्रेंड चेंजेस? बिकॉज आपका जो वेंटेज पॉइंट है वो मुझे भी नहीं है और इन्वेस्टर्स को तो है ही नहीं। सो फ्यू थिंग्स दैट विल चेंज इन्वेस्टिंग over the next 5-10 years. Any specific sector you like which will get redefined? Any specific theme you think you love which will get redefined because of the changes that is happening in the world due to technology or anything else? So change is constant. Today it is impossible for me to figure out how future is going to shape up. Right. In the short term, we all kind of overestimate things, and in the long term, we always end up underestimating how things will change. So what is most important is that I go and invest in those entrepreneurs who are most responsive, who are most adaptive. अपनी सृष्टि का नियम है कि जो सबसे ताकतवर प्राणी है वो जिंदा नहीं रहता, डायनासोर सब गुजर गए, लेकिन जो सबसे एडॉप्टिव प्राणी है, जो इवॉल्व हो सकता है, वह सबसे लंबा चलता है। सेम चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में है। एक, वी हैव टू बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ताकि अगर कोई चेंजेस हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप आए या विरुद्ध आए उतनी इम्पैक्ट ना हो। सेकंड, ऐसे एंटरप्रेन्योर से निवेश करे जो हरफन मौला हो, हर परिस्थितियों का सामना कर सके, जो एडॉप्टिव हो, जो इवॉल्व करते रहे। इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स में निवेश करेंगे तो हम फ्यूचर्स की अनसर्टेनिटी के ऊपर जीत पाएंगे। बट एनी स्पेसिफिक थीम या सेक्टर कुछ है आपके दिमाग में कि यू वोंट वांट टू हैजर्ड अ कॉल? हमेशा सेक्टर में तो आप टॉप डाउन निवेश करते ही है, लेकिन अच्छे एंटरप्रेन्योर को लेना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग में अच्छे एंटरप्रेन्योर से निवेश किया तो HDFC बैंक, कोटक बैंक जैसी कंपनी बन जाएगी। अच्छे एंटरप्रेन्योर पे नहीं निवेश किया तो यस बैंक या दीवान हाउसिंग आ जाएंगे। सेक्टर्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योर के ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोटक एंड आपका फुल फिलॉसफी इज बॉटम अप इन्वेस्टिंग, आप टॉप डाउन तो टॉप डाउन भी ध्यान में रखते हैं, मिक्स है थोड़ा बहुत। हाँ, आदमी के साथ निवेश करिए। जैसे विवेक भाई, आपके अगर बच्चे हैं तो आप उनकी शादी कोई खराब फैमिली में तो नहीं करेंगे। सबसे बड़े डॉन के साथ तो आप अपने बेटे बेटी की शादी नहीं करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि अच्छे आदमी के वहाँ से या अच्छे आदमी के उधर हम रिश्ता बनाए। तो जो चीज़ आप अपने बच्चों के लिए करते हैं वही आपको पैसे के लिए हमें करना है। अच्छे आदमी से रिश्ता बनाए, बुरे आदमी से क्यों बनाए?
Right. No, no, very interesting. I think आपके anecdotes are always been very good to hear. Nilesh bhai, last segment would like to know who's your best fund manager. माने it's a tricky question for you, but माने global and domestic अगर कोई है तो आपको you cannot name yourself. नहीं, मैं नहीं मानता कि मैं सबसे अच्छा फंड मैनेजर हूँ। नहीं, बट फिर भी कोई है आपके मन में जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो? See, एक चीज हमने हमेशा देखी है कि सभी से सीख लेने का। मैं उस समय में हूँ कि जहाँ पे मेरे आसपास बहुत सारे दिग्गज हैं। ये ऐसी भारतीय क्रिकेट टीम है जिसमें गांगुली भी है, सहवाग भी है, द्राविड भी है, लक्ष्मण भी है, कुंबले भी है, जहीर खान भी है। तो ये तो हरफनमौला टीम है। आप रियली लकी हो कि इनकी संगत में आप बैठ रहे हैं। हर अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्वालिटी ऑफ मैं फंड मैनेजमेंट देखूं तो बहुत ही मतलब निश्चिंत रहता हूं कि ये टीम और कहीं नहीं होगी। ओके, आपका बेस्ट मूवी, सॉन्ग, पॉडकास्ट, बुक? सो अगेन, जो चीज अच्छी लगे करती रहने की, तो शोले, आनंद, सत्यकाम, इन प्रकार की मूवीज आज भी याद रहती है। अच्छा। उसका मतलब ये नहीं कि नेटफ्लिक्स में कोई नई मूवी आए तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। कुछ सीरीज आपके जो लाइक रियली स्ट्रक योर हार्ट? ऐसी बहुत सारी एजुकेटिव सीरीज है नेशनल ज्योग्राफिक की या वाइल्ड लाइफ की जो बहुत अच्छी लगती है। बट एक मसाला सीरियल जो बहुत अच्छा लग गया है वो सूट्स करके है। वहाँ पे मैंने देखा कि अमेरिकन लीगल सिस्टम कितनी अच्छी है, कैसे वहाँ पे जस्टिस की डिलीवरी होती है, कैसे वहाँ पे बड़े से बड़े लोगों के ऊपर भी कानून की तवाई होती है। तो उसी चीज को जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम वहाँ से बहुत पीछे हैं। तो थी तो मसाला सीरियल, बट वहाँ पे जिस तरह से कानून के पहलुओं को बारीकाई से जांच किया और जिस तरह से डिसीजन आते थे वो बहुत अच्छे लगे। और स्कैम 92 पे क्या व्यू है? आपने तो वो दौर एक्सपीरियंस किया है खुद, तो आई गेस आपने देखा होगा वो सीरीज। यस, वो सीरीज मैंने जरूर देखा, बुक भी पढ़ी। कैसा लगा आपको वो देख के? मतलब एक ऐसा लगा जैसे इतिहास में चले गए हैं। बहुत सारे नाम जो स्कैम 92 में थे उनको मैं जानता था, मिलता था। तो ऐसा लगा कि जो चीज हमने देखी है आज उसी चीज का पुनरावर्तन हो रहा है रील के ऊपर। राइट। एंड लास्ट बेस्ट बुक, पॉडकास्ट या ब्लॉग अगर आप कुछ है आपके दिमाग में? विवेक भाई, इसमें तो एकदम लालची हूँ मैं। सामने समंदर पड़ा है तो एक कमंडल क्यों लूं, सारा समंदर पीने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो जब मिले जो मिले पढ़ते रहने का। जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे पास मतलब पैसे नहीं थे उतने कि न्यूज़पेपर खरीद सकूं, तो मैं अपने नेबर का न्यूज़पेपर ले लेता था। मराठी न्यूज़पेपर आता था तो वो पढ़ लेता था, गुजराती मिला तो गुजराती पढ़ा, और फिर उम्मीद करी कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ लूँ। हमारे मतलब मेरे जहाँ पे मैं कालबा देवी रोड पे रहता था वहाँ पे थोड़ी दूर एक लाइब्रेरी थी, तो तकरीबन मतलब आधा घंटा चल के जाना पड़ता था। तो जब मौका मिले तो चल के चले जाता था वहाँ पे। सुबह का गया, रात तक पढ़ाई करता रहता था, सारे मैगजीन, सारी बुक, सारे न्यूज़पेपर्स जो मिले सब पढ़ लेता था। तो ये पढ़ाई का एक जुनून सर पे सवार हो गया है। आज बुक्स की जगह पे किंडल आ, पॉडकास्ट आ गए, बट समंदर पीने की ख्वाहिश रखता हूँ, एक कमंडल से संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, एक कोई इंसिडेंट आप बताइए आपके लाइफ में जहाँ पर एज ए फिड्यूशरी म्यूचुअल फंड, लाइक हेड ऑफ अ म्यूचुअल फंड, आप आईसीआईसीआई में भी थे, एनी इन्वेस्टर ने आपको आके बोला है कि आपके कारण मेरे ये फाइनेंशियल गोल्स मीट हो गए या ये मेरे को लाइफ में बेटर हुआ है? एनीथिंग विच टच्ड योर हार्ट? कुछ एक इंसिडेंट आप प्लीज बताइए। जब मेरी सगाई हुई थी, हमारी अरेंज मैरिज थी, तो मेरी वाइफ कॉलेज में प्रोफेसर थी। विच ईयर वाज दिस?
दिस वाज इन द मिड 90s, मिड 95। 90s। ओके। तो कई बार देखता था कि हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं और उनका कोई स्टूडेंट गाड़ी रोक लेता है कि मैम कहीं जाना है, मैं छोड़ दूँ। सिनेमा देखने जाते थे तो बच्चे आ जाते थे कि मैडम ये टिकट ले लीजिए, आप लाइन में मत खड़ी रहिए। तब मुझे लगता था कि जिंदगी में कभी ऐसा काम करना है कि अपने को भी ये विश्वास मिले, अपने को भी ये इज्जत मिले। कुछ समय पहले एक डॉक्टर के पास गया था मेरी वाइफ को लेके, मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली थी एंड थोड़ा बाहर रुकना भी पड़ा मुझे बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स की लाइन लगी थी। जब मैं अंदर गया तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी वाइफ का निदान किया, बोला बेटा कुछ भी नहीं है, जरा भी डरो मत, सब कुछ ठीक है, ये दवाई लिख लेता हूँ, ठीक हो जाओगी। तो जब मैं बाहर निकला तो उनके रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि मैम क्या पैसा देना है, तो उन्होंने फ़ोन अंदर करके पूछा और बोला नहीं कुछ नहीं देना है। तो बोला अरे ऐसा क्यों, मैं तो इन डॉक्टर साहब को पहली बार मिल रहा हूँ और इतने बिजी है, इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है। तो मैंने बोला कि आप एक बार फिर से पूछ लीजिए, शायद कुछ गलती हो रही है। तो बोला नहीं नहीं, तुमसे कोई पैसा नहीं लेना है। तो मैं वापस कैबिन में गया कि सर आप पैसा नहीं चार्ज कर रहे मुझे, आई कैन पे। तो इसे नहीं नहीं, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे फंड में मेरा बहुत अच्छा पैसा बना है, अब तेरे से क्या चार्ज करूँ। वेरी नाइस। ये चीज़ें आज हम हमेशा देख रहे हैं। शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग आके सर पे हाथ रखता है कि देख बेटा तेरे फंड में पैसा निवेश किया तो आज हम लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। कहीं मैं हमेशा इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करता हूँ कोटक म्यूचुअल फंड। कई बार देखा है कि बिजनेस क्लास में बैठा हुआ आदमी कहता है अरे नीलेश भाई आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं आपके फंड में बहुत बार निवेश किया। तो अब जैसे पहले मेरी वाइफ को प्रोफेसर का इज्जत मिलता था अच्छा। वैसे ही टीचर को मिलने लगी है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स है, म्यूचुअल फंड के सीईओ है जिनको ये दुआएं मिलती है। आप और इक्विटी प्रोफेसर हो। मैं कहता हूँ कि मेरा एक ही जॉब ऐसा है जिसमें पैसे भी मिलते हैं और ऊपर से दुआएं भी मिलती है, तो मैं अपना जॉब अच्छी तरह करूँ, उसमें नवाई क्या है। मैं इस पॉडकास्ट को इक्विटी प्रोफेसर करके इसको टाइटल दे दूंगा। बट थैंक यू सो मच नीलेश जी, आई थिंक इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू। आप जैसे जो दिग्गज है एंड योर यू नो the kind of vintage you come with, I think very few people can boast of, especially in a time when बहुत नए नए फंड मैनेजर्स है, इन्वेस्टर्स है एंड हम गोल्ड तरफ से भी हम बहुत रिसर्च करते हैं, तो वॉलेटिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इज़ अ बिग मेजर ऑफ आवर फंड रिकमेंडेशन। सो जैसे आपके 2-3 फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, ये सब में परफॉर्मेंस का तो नहीं पता, बट कंसिस्टेंसी में इट कम्स fairly on the higher side. So thank you so much for being a guest and thank you so much.